بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد اور میں ہوں عروبہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ناظرین، دنیا نے افغانستان کا ساتھ نہ دیا تو سنگین انسانی بحران کا خطرہ ہے۔ افغانستان کی 90% آبادی کا خط غربت سے نیچے جانے کا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں مزید کہا، افغانستان میں انسانی بحران پیدا ہوا تو ایک بار پھر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بننے کا خطرہ ہے۔ دنیا کو آگے بڑھ کر مدد کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا، افغان جنگ سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا، پاکستان پر الزام تراشی کرنا درست نہیں۔ The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events. From this platform, I want them all to know, the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan. When we joined the US war on terror after 9/11, 80,000 Pakistanis died. $150 billion was lost to our economy. There were 3.5 million internally displaced Pakistanis. The only reason we suffered so much was because we became an ally of the US, of the coalition in the war against Afghanistan. But rather than appreciation, imagine how we feel when we are blamed for the turn of events in Afghanistan. The whole world community should think, what is the way ahead? There are two paths we can take. If we neglect Afghanistan right now, according to the UN, half the people of Afghanistan are already vulnerable. And by next year, almost 90% of people in Afghanistan will go below the poverty line. There's a huge humanitarian crisis looming ahead. And this will have serious repercussions, not just for the neighbors of Afghanistan, but it will have repercussions everywhere if a destabilized, a chaotic Afghanistan again becomes a safe haven for international terrorists. The reason why the US came to Afghanistan in the first place. We must strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan by urging everyone that this is a critical time for Afghanistan. You cannot waste time. Help is needed there. Humanitarian assistance has to be given there immediately. وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کو دکھا دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب میں کہا، بھارت میں 20 کروڑ مسلمانوں سے بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ RSS رجیم انتہا پسندی کو پروان چڑھا رہی ہے، گائے کے رکھوالے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا، مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ سے علی گیلانی کی تدفین شہداء قبرستان میں کروانے کا مطالبہ کرے۔ وزیر اعظم کا مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی دیکھیے۔ Islamophobia is another pernicious phenomena that we all need to collectively combat. The worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India. The hate-filled Hindutva ideology propagated by the fascist RSS BJP regime has unleashed a reign of fear and violence against India's 200 million Muslim strong community. Mob lynching by car vigilantes, frequent pogroms such as the one in New Delhi last year, discriminatory citizenship laws to purge India of Muslims, and a campaign to destroy mosques across India and obliterate its Muslim heritage and history are all part of this criminal enterprise. New Delhi has also embarked on what it ominously calls the final solution for Jammu and Kashmir dispute. It has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000. It has jailed senior Kashmiri leadership, imposed a clampdown on media and internet, abducted 13,000 young Kashmiris and tortured hundreds of them.
It has extrajudicially killed hundreds of innocent Kashmiris in fake encounters and imposed collective punishments by destroying entire neighborhoods and villages. India's action in occupied Jammu and Kashmir also violate international human rights and humanitarian laws, including the 4th Geneva Convention, and amount to war crimes and crimes against humanity. The most recent example of Indian barbarity was the forcible snatching of the mortal remains of the great Kashmiri leader, Sayyid Ali Shah Gilani. तरक्की पजीर ममालिक की बदउनवान अशराफिया दौलत लूट कर अमीर मुल्कों में मुंतकिल कर रही है। इनकी लूट मार की वजह से अमीर और गरीब मुल्कों के दरमियान फ़र्क ख़तरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था 7,000 अरब डॉलर के चोरी शुदा असासे महफूज मालियाती पनागाहों में छुपाए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दौलत की गैर कानूनी उड़ान को रोकने और दौलत को वापस लौटाने के लिए दुनिया इक़दाम करे। शाह महमूद कुरैशी 26 से 29 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करेंगे, जहां वो बरतानिया की सेक्रेटरी खारजा लिज थ्रस समेत आला सरकारी हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। 26 सितंबर को पाकिस्तान हाउस लंदन में कम्युनिटी के साथ मुलाकात और कारोबारी हजरात के साथ इशाइये में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की बरतानिया में मसरूफियात के हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ ग़ुलाम हुसैन आवान की ये रिपोर्ट। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 26 से 29 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करेंगे, जहां वो बरतानिया की सेक्रेटरी ख़ारजा लिज ट्रूस समेत आला सरकारी हुकाम और पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बरतानवी हम मनसब से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अचानक दौरा पाकिस्तान मनसूख करने के मामले को भी उठाएंगे। सरकारी ज़राए का ये भी कहना है कि शाह महमूद कुरैशी दौरे के दौरान अफगानिस्तान समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बरतानवी दिफाई थिंक टैंक से भी खिताब करेंगे। इसके अलावा वो अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ शहरों से आने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं के वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के बाद अमरीका से बरतानिया आएंगे, जहाँ वो पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में अमरीका और बरतानिया में अपनी मसरूफियात के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें वो पाक बरतानिया ताल्लुकात और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाही फराहम करेंगे। ग़ुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। पीपल्स पार्टी यूरोप की कश्मीर कमेटी के वाइस चेयरमैन निसार खोखर पार्टी छोड़कर PTI में शामिल हो गए। निसार खोखर की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए सजाई तकरीब में PTI के मकामी क़यादत ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद, खान साहब जिंदाबाद। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान की हुकूमती जमात PTI की हमायत करती है। PTI को पाकिस्तान में इक़्तिदार में आए हुए 3 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन अब भी ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान की क़यादत पर इत्तमाद करते हुए तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। ग्लासगो की समाजी और कारोबारी शख्सियत निसार खोखर ने गुज़िश्ता रोज मुकामी होटल में PTI स्कॉटलैंड के ओहदेदारान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी यूरोप की कश्मीर कमेटी के वाइस चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और PTI में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान ही पाकिस्तान का वाहिद रहनुमा है जो पाकिस्तान को आलमी दुनिया में बावकार मुकाम दिलवाएगा और उनकी मौजूदा खुद मुख्तार पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान और सब्ज पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ है। वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में शमूलियत का आज हम ऐलान करेंगे। मैं PTI में शामिल हो रहा हूँ, तो मैंने जो पीपल पार्टी उसको रिजाइन कर दिया ये PTI की वजह से, क्योंकि इनका मैंने मंशूर देखा है और जो इमरान खान का जो व्यू है वो हमें आगे लेके चलना है और मैं इन भाइयों के साथ मिलके चलूंगा। सूफी साहब, राना साहब और अपने तमाम भाई इधर हमारे साथ हैं, सब इधर कोर कमेटी के मेंबर हैं और इनके साथ जो है ना जो भी है हर तरह से हम इनका साथ देंगे और साथ चलेंगे। निसार खोखर साहब को वेलकम कहता हूँ PTI वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के पूरी टीम की तरफ से, जो आज उन्होंने डिसीजन लिया PTI में शमूलियत इख्तियार करने का, और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ये निसार खोखर साहब जो जैसे कि पहले भी कम्युनिटी के अंदर जानी मानी शख्सियत और कम्युनिटी वर्क करते रहते हैं, तो ये इमरान खान के विजन को PTI वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड को मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा हम मेंबरशिप करेंगे, पार्टी को फ़ायदा होंगे और ओवरसीज़ के जितने भी मसाइल हैं निसार खोखर साहब के साथ मिलकर इंशाल्लाह पूरी टीम हमारी बड़ी एक्साइटेड है कि निसार खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया तो इंशाल्लाह ओवरसीज़ के जितने मसाइल होंगे वो हल करेंगे। PTI स्कॉटलैंड के सदर में मियां अहमद
सूफी और नायब सदर अनस राना ने इस मौका पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम नए आने वाले साथियों को पीटीआई में शमूलियत पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और उन्हें फौरी तौर पर कमेटी में भी शामिल कर लिया गया है। लंदन के अमरीकी सफारतखाने में अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के उर्दू तर्जुमान ज़ैद तारड़ ने कहा है कि अमरीका ने अफ़गानिस्तान से इनखला नाकामी के बाद नहीं किया बल्कि पहले से बेहतर अफ़गानिस्तान छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका ने बातचीत के ज़रिए ख़ित्ते में अमन के लिए कोशिशें की। ब्यूरो चीफ यूके ग़ुलाम हुसैन आवान से बातचीत करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त अमेरिकन एम्बेसी लंदन के अंदर जो है वो दफ्तर ख़ारजा के उर्दू तर्जमान ज़ैद तारड़ साहब मौजूद हैं। इनसे इस वक्त पूछते हैं कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जब से जो है वो अमेरिकन जो फोर्सेस हैं उनका अफ़गानिस्तान से इंखला हुआ है, उसके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर इस वक्त क्या असरात पड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे ये जानते हैं। जी हम समझते हैं कि बिल्कुल वक्त आ गया था कि हम अपनी फ़ौजी फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से निकालें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने आगे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं देना या हमने पूरी दुनिया के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में जितना भी हम काम कर सकते हैं, ख़ास तौर पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के हवाले से, वो हम नहीं जारी रखेंगे। सर ये बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जहाँ 20 साल पहले था अफ़गानिस्तान, अमेरिका ने 20 साल बाद भी अफ़गानिस्तान को वहीं छोड़कर जा रहे हैं। जी ये हम बिल्कुल नहीं समझते कि ये हकीकत है। अगर आप अफ़गानिस्तान में तरक्की देखें तो हम समझते हैं कि उन्होंने बहुत तरक्की की है पिछले 20 साल में, और हम ये भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो इसी रास्ते पे जाएं ताकि तरक्की कर सकें, और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि कैसे हम जाने कि लोग तो बाहर आने के लिए जहाज़ के साथ लटक रहे हैं, कुछ लोग इससे हलाक भी हुए हैं और अभी भी बहुत सारा ऐसा वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लोग बाहर भाग रहे हैं, तो कैसे ये बात आपकी मान है? बल्कि आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात की है। हम ये चाहते हैं कि तालिबान जितने भी लोग अफ़गानिस्तान से जाना चाहते हैं, जितने भी फ़्लाइट्स हैं, चार्टर फ़्लाइट्स हैं, उनको जाने दें और लोगों को ना रोकें अफ़गानिस्तान से बाहर जाने के लिए। हमने देखा है कि पिछले चंद दिनों में कई फ़्लाइट्स गए हैं जिनमें शामिल अमरीकी भी थे और अमरीकी शहरी भी थे और हमारे परमानेंट रेजिडेंट भी मौजूद थे उन फ़्लाइट्स में। तो ये एक कदम आगे है बिल्कुल, और हम बहुत करीब से देख रहे हैं कि क्या ये मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा या नहीं। अमेरिका समेत जो नेटो फोर्सेस हैं उन्होंने वहाँ पर तशद्दुद पसंद जो अफराद थे अफ़गानिस्तान के, चाहे तालिबान थे चाहे और थे, 20 साल तक उनसे जंग रखी। अब क्या उनसे सुलह हो चुकी है? अब उनको तस्लीम कर लिया जाएगा कि दे आर नाइस पीपल? ये गलत बात है कि पिछले 20 साल से हम इंतहा पसंद से लड़ रहे थे अफ़गानिस्तान में, बल्कि सदर बाइडन ने बहुत साफ़ तरीके से ये कहा है कि हमने एक ही वजह के लिए अफ़गानिस्तान में गए हैं और वो था 9/11 का जवाब देना, जो कि हम दे चुके हैं, बल्कि 10 साल भी हो गए उसामा बिन लादेन की ऑपरेशन पर। तो जी ये भी हम देख रहे हैं कि क्या अफ़गानिस्तान मुस्तकबिल में कभी दहशतगर्दी का अड्डा ना बने, और इसीलिए UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी रेजोल्यूशन में ये बहुत साफ़ तरीके से कहा है कि अफ़गानिस्तान कभी भी दहशतगर्दी का अड्डा नहीं बन सकता, ना हम बर्दाश्त करेंगे। सिर्फ अमेरिका नहीं है, पूरी सिक्योरिटी काउंसिल इस मामले में जुड़ी हुई है। पाकिस्तान ने वियना में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की 65वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़िंदगी के लिए जौहरी तवानाई के मौजू पर एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके ग़ुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। जिंदगी के लिए जोहरी तवानाई IAEA की जनरल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की खसूसी तकरीब का इनकाद। तकरीब का मकसद ये जाहिर करना था कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में बिजली की पैदावार, ज़राअत, सनद, सेहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में पुरअमन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल किया है। डायरेक्टर जनरल IAEA राफेल मारानो-ग्रोसी ने बतौर मेहमान खसूसी तकरीब का इफ्तिताह किया। वियना में होने वाली IAEA की जनरल कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी वफूद, सफारतकारों और IAEA
IAEA सेक्रेटरीट के मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के आगाज पर पाकिस्तान की तरफ से जोहरी तकनीक के जरिए तैयार करदा आला पैदावार वाले काटन प्लांट का एक महफूज नमूना पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ने DG IEA को पेश किया। डायरेक्टर जनरल ग्रोसी ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान के कारनामे जोहरी टेक्नोलॉजीज के पुरअमन इस्तेमाल से पायदार तरक्की के हसूल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल ग्रोसी ने कहा कि IAEA बाहमी फायदामंद शराकत को मजीद बढ़ाने में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। इस मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मोहम्मद नईम ने कहा कि एटमी पाकिस्तान के लिए सस्ती, पायदार और साफ तवानाई का एक अहम जरिया फराहम करता है। मोहम्मद नईम ने कहा कि एटमी प्लांट पाकिस्तान के लिए सस्ती, पायदार और साफ तवानाई का एक अहम जरिया है, जिससे न सिर्फ तवानाई की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा किया जा रहा है बल्कि इससे मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से भी निपटा जा सकता है। आलमी जोहरी अदारे में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आफ्ताब अहमद खोखर ने इस मौके पर कहा कि एटमी टेक्नोलॉजीज ने न सिर्फ बिजली की पैदावार बल्कि ज़राअत के शोबे में आला पैदावार और इंतहाई मौसमी मुज़ाहमती अक़साम की तरक्की के जरिए पाकिस्तान की मईशत में बहुत बड़ा हिस्सा डाला है। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की 65वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और तुर्की के वफूद ने दो तरफा मुलाकात की। पाकिस्तान के वफ्द की क़यादत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद नईम ने की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। IAEA की 65वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के मौका पर पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा मुलाकात। तुर्क फरीक की क़यादत तुर्क न्यूक्लियर एंड मिनरल रिसर्च एजेंसी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कादर बालीकी ने की। वियना में बैनुल-अक़वामी तंजीमों में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर आफ्ताब अहमद खोखर ने भी इजलास में शिरकत की। दोनों फरीकों ने सेहत और ज़राअत के शोबे में एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल से मुतल्लिक बाहमी फ़ायदामंद ताउन के मौक़े की निशानदही की और साथ ही जोहरी रेगुलेटरी दायरे में तजर्बात का इश्तराक भी किया। सफ़ीर आफ्ताब अहमद खोखर ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के लिए पाकिस्तान की रुकनीत के लिए तुर्की की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के वफ़द से भी बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की 65वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के मौका पर दो तरफा मुलाकात की। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान IAEA के ज़ेर एहतमाम ताउन जारी है। जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दोनों फरीकों ने एटमी अद्वियात और कैंसर के इलाज पर तवज्जो मरकूज करते हुए उसे दीगर शोबों में खसूसन सेहत में बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल किया। आक़ाए दो जहां खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के माह मुबारक रबीउल अव्वल की आमद से कबल ही दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों ने अपने प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न अक़ीदत और एहतराम और दरूद व सलाम की महफ़िल मुनक़्क़िद करने से आगाज़ कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात असगर मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। मंगदा नियाज़ी तेथों सदका तेरी आलदा, मंगदा नियाज़ी तेथों। आकाए दो जहां खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के माह मुबारक रबीउल अव्वल की आमद से कबल ही दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों ने अपने प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का जश्न मनाने का आगाज़ कर दिया है। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सैयद हामिद शाह के घर में महफिल नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मीटिंग बसिलसिला खत्म नबूवत का इनअकाद किया गया, जिसमें जर्मनी की कम्युनिटी के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। पुरौनक महफिल में शेख मुनीर, खुशहाल खान, तुकीर बुटर साबरी और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की और आकाए दो जहान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश किया गया, जबकि नामवर शख्सियात के साथ साथ मोअज़्ज़िज़ नाथ खां ने हदिया कलाम पेश किया। जर्मनी के दीगर शहरों म्यूने, स्टंगार्ड, न्यूरनबर्ग और फ्रैंकफर्ट से भी बड़ी तादाद में मोअज़्ज़िज़ शख्सियत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकीन ने शिरकत की और दरूदो सलाम पेश किया। पुरौनक महफिल के इनकाद पर शुरका ने मुंतज़मीन को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तानी कौंसलेट इस्तंबुल में नादरा की सर्विस का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के इस दरीना मुतालबे का ऐलान कौंसल जनरल बिलाल खान पाशा और डिप्टी कौंसल जनरल दानिश महमूद की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में किया गया। नादरा की सर्विस के लिए अपने पासपोर्ट और पे फॉर्म शनाख्ती कार्ड के हमरा तशरीफ़ लाएँ, जिसमें विरासती इंतकाल की बायोमेट्रिक तस्दीक, नादरा के जारी करदा कागजात की तस्दीक, सब सहूलत कौंसलेट में मुयस्सर होगी। नादरा फीस के अलावा $20 सर्विस चार्जेस वसूल किए जाएंगे। फैमिली सर्टिफिकेट, विरासती इंतकाल की बायोमेट्रिक तस्दीक और नादरा के जारी करदा कागजात की तस्दीक के लिए $10 सर्विस चार्जेस भी वसूल किए जाएंगे।
نادرا کی سروسز کے لیے اپنا کریڈٹ کارڈ اور 2 عدد گواہان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں بما موبائل نمبر کے ہمراہ قونصلیٹ میں تشریف لانا ہوگا۔ مسلم لیگ نون مڈل ایسٹ کی جانب سے سعودی عرب کے قومی دن کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں سفارت خانہ پاکستان کے افسران سمیت کمیونٹی کے دیگر افراد نے بھرپور شرکت کی اور سعودی قیادت سمیت سعودی عوام کو قومی دن کی مبارکباد پیش کی گئی۔ مزید جانتے ہیں عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان مسلم لیگ مڈل ایسٹ کی جانب سے سعودی ڈے کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سفارت خانہ پاکستان کے ویلفیئر اتاشی نوحید افضال کا کہنا تھا کہ پاک سعودی تعلقات ہمیشہ سے مستحکم رہے ہیں۔ دونوں ممالک اس سال اپنے سفارتی تعلقات کے 75 سال پورے کر رہے ہیں، جو کہ دونوں ممالک کے لازوال تعلقات کا خاصہ ہیں۔ مسلم لیگ نون مڈل ایسٹ کے کوارڈینیٹر شیخ سعید احمد کا کہنا تھا کہ پاک سعودی تعلقات عوامی سطح پر استوار ہیں۔ دونوں ممالک اسلامی دنیا سمیت دیگر دنیا کے اہم ترین ممالک میں شامل ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں گزشتہ 4 دہائیوں سے لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی مقیم ہیں جو اسے اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں، اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سعودی قیادت اور عوام نے پاکستانیوں کو اہمیت دی ہے، ان کے لیے ملازمتوں سمیت دیگر امور میں آسانیاں فراہم کی ہیں۔ حرمین شریفین کی بدولت پاکستانیوں کے دل اس سرزمین کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہاں پر حرمین شریفین جب بھی ہمارا دل کرتا ہے ہمارا شریف چلے جاتے ہیں، مسجد نبی کی زیارت کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی خوش قسمتی اور نہیں ہو سکتی۔ تو ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں میرا خیال ہے 47 سے جب سے پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت سے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل برادرانہ تعلقات ہیں اور ہر لمحے پر انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے۔ ایک چیز جو ہے نا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ نہ صرف یوم الوطنی ہے بلکہ یہ 75 ایئرز پاکستان اور سعودی عرب کے ریلیشن قائم ہونے کی بھی سالگرہ ہے۔ اس مناسبت سے بھی ایک بڑا اہم دن ہے، اور جیسے حافظ صاحب نے بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور ان کے تو جھنڈے کے اوپر جو ہے نا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ ایسا ہے جیسے ایک جسم میں 2 جانیں۔ تقریب سے حافظ عبد الوحید، محمود الحق ڈوگر، سجاد چودھری، قاضی اسحاق میمن، ظہور ینگ، اسلم راہی سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمیر علی، نمائندہ 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب۔ جولائی میں کینیڈا کی ریٹیل سیل 0.6% کم ہو کر 55.8 ارب ڈالر رہ گئی۔ سپر مارکیٹوں اور گروسری سینٹرز پر فروخت میں کمی واقع ہوئی۔ شماریات کینیڈا نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ شماریات کینیڈا کا کہنا تھا کہ اگست کے لیے ان کے ابتدائی تخمینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ کے لیے ریٹیل فروخت میں 2.1% اضافہ ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ اعداد و شمار پر نظر ثانی کی جائے گی۔ ماہر معاشیات کوشک نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ اگرچہ ریٹیل فروخت میں کمی جولائی کے جی ڈی پی میں پل بیک کے مطابق ہے، لیکن اگست کے ابتدائی اشارے معیشت کی وسیع تر واپسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شماریات کینیڈا کے مطابق جولائی میں ریٹیل سیلز 5 شعبوں میں کم ہوئی۔ سپر مارکیٹوں اور دیگر گروسری سٹورز پر فروخت میں 3.4% اور کھانے پینے کی دکانوں پر 3.4% کمی ریکارڈ کی گئی۔ سہولت سٹورز پر فروخت میں 8.4% کمی ہوئی اور اسپیشلٹی فوڈ سٹورز کی فروخت میں 0.4% کمی دیکھی گئی۔